Hello everyone. Today we are going to discuss our lesson number 3 of geography, that is the tides. Okay. So please observe this figure very carefully. Okay. Now you will understand that both the photograph shows the same place. Okay. See, this is the same place. Okay, but you will find a difference. So it is the same place. You will find a difference in case of water level. Okay, so if you stay near the coast for some time, you will realize that sea water is sometimes very close to the coast. If suppose you have visited the coast, you will find, okay, sometimes the sea water is very close to the coast, but sometimes you will see that it is far away from the coast. So we call these movements of the sea water tides. Understood? Sometimes you will observe that the sea water is very close to the coast, and sometimes it is far away from the coast. So these movements are called as the tides. Okay. Taking a few exceptions, all the coast on the earth experience tides. कुछ अगर हम exceptions को छोड़ देते हैं, leaving some few exceptions, okay, all the coast on the earth, जितने भी coastal areas है earth के, वहां पे ये जो phenomenon है, that is of tides, happens. Okay, and high and low tides are the natural phenomenon which happens on the coastal regions. So let us know what is mean by high tide and low tide. So first we will discuss the high tide. The definitions are there on the blackboard. Okay, a rise in a sea water level is called high tide. अंडरस्टूड? जहां पे सी वाटर लेवल जो है ये राइज हो जाता है कोस्ट की तरफ, ओके, देन वी कॉल इट एज अ हाई टाइड. ओके, सो व्हाट हैपेंस एट द टाइम ऑफ हाई टाइड? सी वाटर इज वेरी क्लोज टू द कोस्ट. व्हाट हैपेंस एट द हाई टाइड? Obviously, if there is a rise in a sea water level, okay, that water will spread to the coastal region or coast of the sea. Okay, so that's why at the time of the high tide we see that sea water is very close to the coast. Now we will talk about the low tide. Okay, so let us know what is meant by low tide. A fall in a sea water level is called low tide. यानी इसका मतलब क्या? जब पानी जो है सी वाटर लेवल जो है उसका पानी जो है वो क्या हो जाता है, उसकी लेवल जो है वो कम हो जाती है, देन वी कॉल इट एज अ लो टाइड. एंड व्हाट हैपेंस इन एट द टाइम ऑफ द लो टाइड? सी वाटर इज फार अवे फ्रॉम द कोस्ट. जो सी का वाटर है ये कोस्ट से, ऑब्वियसली पानी नहीं रहेगा तो वो कोस्ट के तरफ कब आएगा? So that's why at the time of the low tide, sea water is away from the coast. So that is about the high tide and low tide. Okay. Okay. So tides are the movements of sea water occurring daily and regularly. It is a natural event. ये हमेशा daily होता रहता है. Okay. The level of the sea water changes after a specific period of time, and after every 12 hours and 25 minutes, a cycle of high tide and low tides get completed. देखो 6 hours and 13 minutes, इसको high tide के लिए 6 hours and 13 minutes and low tide के लिए again 6 hours and 12 and half समझ लो, so that is again 13 minutes. Okay, so total is how much? 12 hours and 25 minutes. ठीक है, 6 hours and 12.5 मिनट. ठीक है ना, ऐसे पकड़ लेंगे हम. तो इसके हाई टाइड के लिए एंड 6 hours and 12 and 30 minutes. ओके, फॉर द लो टाइड. सो टोटली इज हाउ मच? 12 hours and 25 minutes. तो इसको टोटल जो ये पूरी साइकिल होती है हाई टाइड और लो टाइड की, दैट इज ऑफ 12 hours and 25
minutes. Understood? Height kite के लिए 6 hours and approximately हम लेते हैं 13 seconds, sorry 13 minutes. And similarly for the low tide 6 hours and 13 minutes. So total जो इसका duration रहता है that is what 12 hours and 25 minutes. ठीक है? So this regularly occurring event appears to be quite simple and natural. However, it is directly related to the sun, the moon, the earth, and the gravitational and centrifugal forces that interact in between. चलो, sun, moon and earth. ये तो टाइड्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते ही है. तो जो मूवमेंट होता है सन, मून और अर्थ का, ओके, you know that earth revolve around the sun and moon revolve around the earth. So ye just because of these movements we find the tides, but the other two forces that helps or that are responsible for happening of the tides are gravitational force and centrifugal force. So before starting tide, okay, you must be aware about what is mean by gravitational force and what is mean by centrifugal force. Okay, so let us start with the meaning of gravitational force. Okay, so देखो, I have just thrown this chalk at the upper side, but जितनी भी बार मैं ये ऊपर फेंक रही हूँ, it comes to the ground. What is the reason? ऐसा क्यों हो रहा है कि एक चीज मैं ऊपर फेंक रही हूं वो नीचे ही क्यों आ रही है? What is the reason? That is just because of the gravity of the earth. जैसे have you seen the magnet? No, magnet देखो कैसे आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना. ओके, एज द आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट, ये जो 3 सब्सटेंसेस है वो जो है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. ओके, isn't it? लेकिन मैग्नेट जो है सिर्फ ये 3 चीजों को, आयरन, कोबाल्ट और निकेल को ही अट्रैक्ट कर सकता है, बाकी सारी चीजों को अट्रैक्ट नहीं करता. बट द अर्थ सारी चीजों को अपने तरफ क्या कर लेती है? अट्रैक्ट कर लेती है. ठीक है? सो ये जो है दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो उसके लिए आपको 2 एग्जांपल मैं देती हूँ, लाइव एग्जांपल. व्हाट यू हैव टू डू, एक पॉट में ना पानी लो, ठीक है, और वो जार को गुल 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 राउंड 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 रो आप जो उसको जो घुमाओ. ठीक है, घुमाने के बाद वो जो आपका पॉट का पानी है ना, ड्यू टू सर्कुलर मोशन, वो क्या होता है, मोशन में आने के बाद वो बाहर के साइड में जो है निकलने की कोशिश करता है ना. वो पानी गिर जाता है, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाओ आप, वो पानी नीचे गिर जाता है. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. आपने किचन ली, ये इस पे बीच में उस किचन को घुमा फंसा दिया और गोल 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 आपने क्या किया, उसको अगेन रोटेट. ओके, व्हाट विल हैपन, कुछ मिनट के बाद वो जो किचन है ये हाथ से निकल के नीचे गिर जाती है, आपकी उंगली से निकलकर नीचे गिर जाएंगी. अंडरस्टूड? सो ये जो फोर्स है वो अर्थ के ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. जो अर्थ के ग्रेविटी के अपोजिट है, दैट इज कॉल्ड एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. समझ में आया? तो ये जो 2 फोर्सेस है दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द हैपनिंग ऑफ द टाइड्स. ओके, अंडरस्टूड? सो let us discuss कि हर एक का what is the role of centrifugal force, what is the role of gravitational force, what is the role of sun, moon and earth in case of happening of tide. So let us know first the definition of centrifugal force and gravitational force. So first we will start with the gravitational force. Okay, due to the centrifugal force due to the gravitational force, what happens, no, any object on the surface of the earth remains at the place where it exists. ठीक है ना, आप कोई भी चीज अगर ऊपर फेंकते हो तो वो नीचे ही आती है. ओके, दैट फोर्स, that central seeking force, we can call it as a gravitational force.
And what is meant by centrifugal force? The power or force that the earth gets due to its rotation. वो रोटेशन के वजह से जो है जो एक फोर्स डेवलप होता है, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और दिस थिंग शुड बी टेकन इनटू योर माइंड दैट दिस फोर्स ऑलवेज वर्क्स अवे फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ द अर्थ. एक तो है सेंटर सीकिंग फोर्स, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स से जो अवे होता है, एग्जैक्टली अपोजिट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, so factors responsible for the happening of the tides, the occurrence of the tides are the gravitational pull of moon and the sun as well as that of the earth. इसका रिलेशन जब हम टाइड कंसेप्ट पढ़ेंगे कि कैसे हाई टाइड आता है, कैसे लो टाइड आता है, then you will know that how the gravitational pull of the moon and the sun and the earth plays an important role in the happening of the tide. Second one is what? Revolution of the earth around the sun and the indirect revolution of the moon around the sun. As I earlier told you कि अर्थ जो है सन के अलाउंग घूमती है और मून जो है वो अर्थ के अलाउंग घूमता है, तो इनडायरेक्टली मून भी जो है वो सन के अलाउंग घूमता है. अंडरस्टैंड? ओके, सो ये जो रिवोल्यूशन है, ये जो रिवोल्यूशन प्रोसेस है, ओके, phenomenon है, that also plays an important role in case of happening of the tide. And last one is the centrifugal force, which is generated due to the rotation of the earth. जब अर्थ मूव होने लगती है, जब वो मोशन में आती है, तभी ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो डेवलप होता है. ठीक है ना? ठीक है. So all these are the factors which is responsible for happening of the tides. So let us know how the tide happens. Sun is far away from our earth. देखो हमारे अर्थ का जो 71% जो हिस्सा है that is covered with the water और 21% लैंड. ठीक है, तो जब सन का वो फेस, जो अर्थ का जो फेस सन के क्या होता है, द फेसिंग पोजीशन पे होता है, ठीक है, सामने होता है, तो व्हाट हैपेंस ना कि जो सन है वो अर्थ के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, एक ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करता है. ठीक है, कौन? सन. किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर, जो पानी का हिस्सा है उसके ऊपर. लेकिन ये जो सन का फोर्स है वो सिर्फ सेंटर तक के ही चलता है, सेंटर के ऊपर ये फोर्स एक्ट नहीं होता. सपोज इट इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो ये जो सन इसके ऊपर क्या करेगा, सन, तो ये जो अर्थ का ये पोर्शन है इसके ऊपर ये क्या करेगा, इस पानी को क्या करेगा, खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, just because of the gravitational pull. और what is about this? तो यहाँ तक के क्या करेगा, ये पानी को क्या करेगा, खींचेगा अपने तरफ. क्या करेगा? अपने तरफ खींचेगा, पुल करेगा. तो मुझे बताओ कि जब ये यहाँ पे, प्लीज सी दिस डायग्राम, ओके, प्लीज सी दिस डायग्राम, कि जब ये अपनी इस साइड को क्या करेगा, ये सन इस पानी को अपने तरफ खींचेगा. ठीक है, ये खींचने के बाद मुझे बताओ यहाँ पे जो है प्रेशर डेवलप होगा. ये सेंटर रीजन पे क्या होगा, ये दोनों रीजन पे क्या होगा, एक प्रेशर डेवलप होगा. ठीक है, और वो प्रेशर डेवलप होने के कारण यहाँ का जो पानी है वो बैक उसके सामने के साइड में और स्प्रेड होगा. ठीक है ना, ये पानी और सामने खींचेगा, इसीलिए सन के इस साइड में, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, तो ये प्रेशर ऑब्वियसली इस तरफ मूव होगा जो भी प्रेशर है, और इसीलिए यहाँ पे और अपोजिट, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके एग्जैक्ट अपोजिट दोनों जगह पे क्या आएगा, हाई टाइड आएगा. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? जो हिस्सा सन की तरफ फेस कर रहा है अर्थ का, जहाँ पे पानी है, तो सन क्या करेगा, उस पानी को खुद की तरफ उस साइड को अट्रैक्ट करेगा. और इट इज क्लियर दैट कि सन जो है वो सेंटर तक के ही अपना फोर्स क्या कर सकता है, एक्सर्ट कर सकता है उसके ऊपर. तो यहाँ का पानी खींच गया, ये पानी खींचने की वजह से इस एरियाज में क्या है, प्रेशर बढ़ गया. ठीक है, और ये प्रेशर यहाँ पे बढ़ने के बाद ये जो पानी है ऊपर चला गया, इसलिए जो अपोजिट एंड है वो, हाँ सपोज ये 0 डिग्री है तो 180 डिग्री में क्या होगा,
0 डिग्री और 180 डिग्री, ये दोनों पे भी क्या आएगा, हाई टाइड रहेगा। और जो ये इस साइड है और ये वेस्ट साइड है, यहाँ पे लो टाइड। अब जब जैसे 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 फिर से वो अर्थ रोटेट होती रहेंगी, तो वैसे ही 6-6 घंटे के बाद हाई टाइड लो टाइड ये चलते ही रहेंगे। समझ में आया? तो अभी ये हुआ किसका रोल, सन का। बट अभी चलो हम मून को भी जो है इस कंसेप्ट में लेके आते हैं। हाउ द मून प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ टाइड। अभी when the moon is very closer to the earth rather than the sun, जितना मून अर्थ के करीब है उतना सन नहीं है। तो मून भी क्या करता है, वो जो पानी है उसके ऊपर क्या करता है, अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है। जो जिसके तरफ सन फेस है वो हिस्सा पानी में है, उसी पानी को क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, पुल करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो जस्ट लाइक सन, मून भी क्या करता है, वो पानी को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। फिर सेम फिनोमिनन होती है। ठीक है, अभी देखो ये मून ने क्या किया, इस साइड से पानी को क्या किया, खुद की तरफ अट्रैक्ट किया। लेकिन यहाँ पे हाई टाइड जो है ज्यादा आता है मून के वजह से, बिकॉज मून इज वेरी नियरर टू द अर्थ। और सेम फिनोमिनन हैपन कि यहाँ का जो ऐसा जो हिस्सा वो मून की तरफ, ये देखो अभी ये यहाँ पे सन था, यहाँ पे हम क्या लेंगे, इस पे मून। तो मून की तरफ जो भी हिस्सा है अर्थ का, ठीक है, ये अर्थ है सपोज, तो ये क्या है, वो पानी जो है, इस हिस्से का पानी जो मून है इसकी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सिमिलर थिंग विल हैपन कि यहाँ पे जो है फिर यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो एरिया है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और इस प्रेशर की वजह से जो है ये पानी जो है इस तरफ धकेला जाएगा। एंड दैट्स व्हाई ये दोनों एक्सट्रीम जो अपोजिट एंड है, ये दोनों पे क्या होगा, हाई टाइड होगा। और यहाँ पे जहां पे पानी का लेवल एकदम कम हो जाता है, वहां पे क्या होगा, लो टाइड होगा। अंडरस्टूड द रीजंस फॉर हैपनिंग द हाई एंड लो टाइड। तो यहाँ पे इस वे से सन और जो मून है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और अर्थ तो पता है आपको, अर्थ एक तो उसको जो है अपने साइड में तो वाटर को पुल करके ही रखता है। तो अर्थ तो अपने तरफ से वो पानी को जो है ना, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने देखा ना कि वो बाहर जाता है अगर एक्सट्रीम रोटेट हुआ तो, और अर्थ क्या करती है, उस पानी को खुद की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करके रखती है, होल्ड करके रखती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। सो अंडरस्टूड? ओके, so this is the meaning of high tide and low tide. Okay, so when there is a high tide at 0 degree Celsius, okay, sorry, 0 degree meridian, at 180 meridian also you will experience a high tide. Okay, and there will be low tide at east and west direction. Okay, so that is all about, that is the 90 degree east, sorry I have just forgotten to mention the degree, 90 degree east and 90 degree west. यहाँ पे क्या होगा, low tide होगा. So that is all about the high tide and low tide. Tomorrow we will know about the spring tide and the type of the tide, that is the what is mean by spring tide and neap tide, and we will also discuss the effect of tides, okay, on the animals life. Okay, so animal lives as well as the human beings. Okay, so in this way we have completed the high tide and the meaning of the tides. We have taken the meaning of the tide, gravitational force, then we have discussed about the centrifugal force, then we have discussed about the meaning of the tide, then high tide and low tide. Okay, so let us end the lecture and goodbye everyone and have a nice day you all.